generally use a microcontroller. उसके अलावा वो एक टास्क करता है एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर जो है मल्टीपल टास्क करता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. टाइम इज अ कंस्ट्रेंट इन केस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, वेयर इन द केस ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम. ओके, सो ये कुछ हमने डिफरेंसेस देखा था. Then we have seen the components of embedded system. So component हमने देखा जिसके अंदर there is one of the most important component that has been added in embedded system, that is called as a timer and counter component. Okay, so timer and counter component क्या है? ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका डिले इंट्रोड्यूस करता है. इट गिव्स यू अ डिले. ओके, जनरली दिस टाइमर एंड काउंटर जब हम आगे पढ़ेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी. वन इज कॉल्ड एज अ हार्ड वायर्ड टाइमर एंड अदर इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट वायर टाइमर. ओके, सो हार्ड वायर्ड में बेसिकली एक हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होगा, और सॉफ्टवेयर में बेसिकली यू विल बी यूजिंग अ प्रोग्रामिंग technique in order to generate this timer and counters, generate these delays. Okay, then the memory is divided in two different categories. One is called as a RAM memory, other is called as a ROM memory. Okay, so generally it follows a structure architecture system which is called as a Harvard architecture. Okay, so instead of using the von Neumann architecture which is used in the microprocessor, the embedded system or the embedded system or the microcontroller that we generally use, it generally follows a Harvard architecture. Okay, so we have got two different set of memory. One will be called as data memory and another will be called as a program memory. उसके बाद हमने एम्बेडेड प्रोसेसर के बारे में पढ़ने की कोशिश की, बिकॉज एम्बेडेड सिस्टम के अंदर दो टाइप का प्रोसेसर आप यूज कर सकते हो. एक को माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है और दूसरे को माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है. सो माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ने के लिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी COI के अंदर 8086 करके माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ा है. ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रो प्रोसेसर. व्हाट वी नीड टू लर्न during this semester is called as microcontroller. Okay, so microprocessor हमने पढ़ा. microprocessor में basically एक architecture देखा. वो आर्किटेक्चर अगर आपने याद होगा COA में भी सेम आर्किटेक्चर हमने देखा था. We have got an accumulator, we have got an arithmetic logical unit, we have got some working registers such as 8086 में. Which are the working registers that we have? Can anybody tell me what are the different working registers that we have in 8086? What are the working registers that we have in 8086? AX, BX, CX, DX. AX, BX, CX, DX. These are the four working registers of General 16 purpose bit, register. which are generally also called as a general purpose registers. Okay, so ये working register बोला जाता है. उसके बाद टाइम एंड क्लॉक सर्किट होता है. फिर SP और PC होता है. SP stand for stack pointer, PC stand for program pointer, and then we have interrupt circuit. So these are the total architecture of a microprocessor. Okay, so apart from the microprocessor, we have to attach two other components. So सिर्फ प्रोसेसर से काम नहीं चलता है. We have to have a memory also, we have to have input output devices. ये तीनों चीज लगा करके हम बोल सकते हैं कि this is a complete computer system. Okay, और ये सारी चीज को आप जनरली एक मदरबोर्ड पे डालते हो. सो ये मदरबोर्ड की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है. सो माइक्रो कंट्रोलर क्या हुआ, साइंटिस्ट को लगा अगर हमें प्रोसेसर की कम कैपेबिलिटी की जरूरत है, कम प्रोसेसिंग की जरूरत है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो फास्टर होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिवनेस एकदम तगड़ा होना चाहिए. ओके, और वो जगह भी कम लेना चाहिए और उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए. तो एक नए टर्म की पॉइंट की गई जिसका नाम था माइक्रो कंट्रोलर. तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, ये सारे चीजों को एक चिप पे डाल देता है. ओके, सो व्हाट इट डज, इट पुट्स अ प्रोसेसर, इट पुट्स अ रैम मेमोरी, it puts a ROM memory, it puts a IO devices, or it also puts a special type of component which is called as a timer onto a same chip, and that chip will be called as a microcontroller. Is the point clear to you? Yes. Okay, so this is what we have covered in the previous class. इतना हमने लगभग पिछले 2 क्लास में कोशिश किया इसको क्लियर करने के लिए. We'll go to the next point, which is called as the difference between microprocessor and microcontroller. Okay, so microprocessor and microcontrollers जो भी है, please make a note of it. notebook में record लिखना चालू करो. ये सब चीजें. ओके, कैन बी आस्क्ड, कैन नॉट बी आस्क्ड, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और एक क्लियर आइडिया देने के लिए कि 8051 जो आप आगे पढ़ने वाले हो उसमें और 8086 जो आपने पढ़ा था उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो समझने के लिए आपको इसका डिफरेंस पढ़ना जरूरी है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर. सो जनरली अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोप्रोसेसर कहाँ पे यूज होता है, वेदर इट इज इन यूज इन कंप्यूटर्स और एम्बेडेड सिस्टम, व्हाट विल बी योर आंसर? माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड इन computers. So यहाँ पे पहला जो line है, that is microprocessors are generally used in general purpose computers, whereas microcontrollers are always used in embedded system. Okay, so that is the first difference that you can write. Second difference जो है इसके अंदर कि microprocessor को सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर को आप यूज नहीं कर सकते. You have to attach
input output devices to it, you have to attach a memory to it. Okay, so आपको connect करना पड़ता है, आपको interface करना पड़ता है to memory to input output devices. Whereas microcontroller में क्या होता है, ये सब का सब एक ही chip में present होता है. So we have got a processor, we have got a memory, we have got input output devices, we have got timer and counter circuit, all put onto a same chip. So that is called as a microcontroller. So that is the second point that is being included in the difference. So I hope the second point is clear to you. Third point में अगर आप जाओगे तो because we are attaching multiple interfaces, multiple devices को attach कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को. जैसे कि अगर आप कंप्यूटर की बात कर लो, कंप्यूटर में you've got इंटेल प्रोसेसर के साथ आप कीबोर्ड को अटैच करते हो विच इज इनपुट आउटपुट डिवाइस. ओके, आप माउस यूज करते हो विच इज इनपुट डिवाइस, आप मॉनिटर को अटैच करते हो विच इज आउटपुट डिवाइस. ओके, यू अटैच your audio device which is again a input device. Okay, उसके sorry output device. We have got a microphone which is an input device. ये सब चीजें आप अटैच करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो सर्किट का जो साइज होगा वो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो सर्किट का साइज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा. In case of microprocessor, the size of the circuit will become huge or it will become less. बढ़ जाएगा. Huge. It will become huge because you have to connect all these components externally. Whereas in the case of microcontrollers, since all these components are present on the same chip, so naturally उसका जो size होगा that is fixed and that is very small. Okay, so that is the third example, third difference that you can give. So microprocessor generally takes huge space, whereas microcontroller takes very less space. Okay. Next जो point है, fourth point है कि जो कम जगह लेगा तो compact system में माइक्रो कंट्रोलर्स को आप यूज कर सकते हो, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ज्यादा जगह लेगा तो उसको कॉम्पैक्ट जगह पे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. ओके, सो जनरली इन द कॉम्पैक्ट सिस्टम इट इज इनएफिशिएंट, यू कैन नॉट यूज इट, व्हेयरएज माइक्रो कंट्रोलर कैन बी यूज्ड इनटू कॉम्पैक्ट सिस्टम्स. ओके, सो जनरली इफ यू talk about your microwave oven which is a compact device. Okay, you have your washing machine which is again a compact device. Okay, though it seems like a huge device but it generally the processing part is very compact part. Yeah, remote का example है, remote is again a compact device. आपका अगर आपने इसका रिमोट देखा होगा, एलईडी का जो स्ट्रिप का जो रिमोट होता है दैट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट डिवाइस. उसके अंदर भी आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसके अंदर आप माइक्रो प्रोसेसर को नहीं डाल सकते. ओके, सो जनरली माइक्रो कंट्रोलर्स कैन बी पुट इनटू कॉम्पैक्ट डिवाइस, thus it is generally efficient. Okay, now tell me which is more important, is microprocessor more important or microcontroller is more important in your daily life? डेली लाइफ की अगर बात की जाए तो माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा जरूरी है आपके लिए या माइक्रो कंट्रोलर? बिकॉज अगर आपके घर में अगर आप माइक्रो प्रोसेसर अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास हार्डली एक या दो माइक्रो प्रोसेसर होगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर, मेरे घर में आई हैव गॉट ओनली 2 माइक्रो प्रोसेसर. आई हैव गॉट अ इंटेल का प्रोसेसर है मेरे एप्पल के अंदर. ओके, एंड इन माय डेस्कटॉप आई हैव गॉट मतलब मेरा खुद का, बाकी भाइयों का है अलग है, बट मेरे जो डेस्कटॉप है उसके अंदर Ryzen 3600 का प्रोसेसर है उसके अंदर. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव एज अ प्रोसेसर. उसके अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसर, द कंट्रोलर दैट आई हैव गॉट मल्टीपल कंट्रोलर्स. I've got a controller in my air condition. I've got a controller in my remote as well. I've got a controller in my television. I've got a controller in various devices. बहुत जगह पे है कंट्रोलर, जैसे कि टीवी के रिमोट में, टीवी के अंदर, फिर वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में, ओवन में, एक्सेट्रा. ओके, सो जनरली अगर आप देखोगे आपका जो भी आपके डेली लाइफ में जो इक्विपमेंट्स है, ओके, व्हाटएवर द इक्विपमेंट्स दैट यू आर यूजिंग, जनरली इट विल होल्ड सम टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. अब वो प्रोसेसिंग बहुत छोटे लेवल की प्रोसेसिंग, कम प्रोसेसिंग की है जरूरत है, लेकिन वो परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी देगा. ओके, जब भी आप बटन प्रेस करोगे इंस्टेंटली वो रिएक्ट होना चाहिए. ओके, ना कि वो बूटिंग में और इसमें टाइम है, वो इंस्टेंटली रिएक्ट होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई जो कंपाइलर जो आपका कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर आप जनरली फास्ट परफॉर्मेंस के लिए और कॉम्पैक्टनेस के लिए आप कंट्रोलर यूज करते हो, वेयर एज प्रोसेसर जो है वो बेटर परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप जनरली प्रोसेसर यूज करते हो. ओके, सो 90% ऑफ द इक्विपमेंट दैट यू सी इन डेली लाइफ जनरली होल्ड्स अ माइक्रोकंट्रोलर, वेयर एज द रेस्ट 10% विल होल्ड अ माइक्रोप्रोसेसर इन इट. सो इज द पॉइंट क्लियर टू यू? ओके, विल गो टू द फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट में देखा जाए तो कॉस्ट की बात की जाती है, तो कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी आपके हिसाब से? A computer microprocessor will cost you a more or a remote controller?
remote control will cost you more. So generally naturally कंप्यूटर ज्यादा होगा, so माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट ज्यादा होगा. ओके, सो जो भी आजकल जितने भी, मेरे ख्याल से AMD ने एक नया लॉन्च किया है which is 3700X प्रोसेसर, जो उन्होंने लॉन्च किया उसका कॉस्ट कुछ तो 58,000 या कुछ तो उसका कॉस्ट है मेरे ख्याल से, शायद जो अभी रिसेंट अपडेट आई है. सो अभी उनके लैक्स में भी आ रहे हैं जो राइजन के अभी जो एकदम मॉडर्न प्रोसेसर आ रहे हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस घटने लगता है. लेकिन जनरली जो एक प्रोसेसर की कीमत आती है रफली वो 30 to 40,000 में एक अच्छे प्रोसेसर की कीमत आती है. Whereas if you talk about कंट्रोलर्स की जो प्राइस होती है वो काफी चीप होती है. ओके, सो रिमोट कंट्रोल आपको 100 रुपए में भी मिल जाता है. ओके, एलईडी का अगर आप रिमोट लेने जाते हो वो आपको 30 to 40 रुपीज में आ जाता है. सो कंट्रोलर इज वेरी चीप बेसिकली. Next is we have got the next difference is called due to the external component, जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके प्रोसेसर में ज्यादा हो जाएगा. ओके, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बिकॉज इट इज कनेक्टेड to different embedded system, it is connected to a processor, so naturally जो processor जो है वो energy ज़्यादा consume करेगा because उसके अंदर large number of external components which are being connected to it. Okay, whereas जो controller है उसके अंदर energy consumption जो है वो कम होगा क्योंकि उसके अंदर external component इतने ज़्यादा नहीं है, वो internal खुद के component को use करके automatically आपका काम करके दे देता है. Okay, so that is why जो energy consumption है that is more in the case of microprocessor, not in the case of microcontroller. Okay, Thus, एनर्जी कंजप्शन अगर ज्यादा है, एनर्जी को बचाना है क्योंकि आप माइक्रो कंट्रोलर आपके एम्बेडेड सिस्टम में ही जनरली होता है और वो मोबाइल होता है. जनरली आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जाते हैं, तो जनरली आप पावर जो सेविंग मोड है, पावर सेविंग मोड जो है आपका जनरली आपको माइक्रो कंट्रोलर में मिलता है, ना कि आपको माइक्रो प्रोसेसर में. सो अगर आप कंप्यूटर को अगर आप स्लीप मोड में भी डाल देते हो तो भी प्रोसेसर बैकएंड में वो चलता रहता है. ओके, इट गोज इनटू दैट मोड. ओके, इफ यू मेक योर प्लेस्टेशन गो इनटू रेस्ट मोड, it will naturally be doing the work continuously, transferring the data in the back end. Okay, so it will perform some other task, but आपका graphical user interface, आपकी स्क्रीन का टाइम और स्क्रीन का जो आपका एनर्जी कंजम्पशन था उसको कम कर देता है, लेकिन प्रोसेसर जनरली चलता रहता है. Whereas in the case of embedded system, प्रोसेसर अपना काम करता है, काम करने के बाद वो अपने आप को आइडल मोड में डाल देता है, शट डाउन कर देता है. ओके, सो इफ यू प्रेस द वॉल्यूम रॉकर ऑफ योर वॉल्यूम बटन, अगर आपके कंट्रोल रिमोट कंट्रोल का अगर आप बटन प्रेस करते हो तो उस टाइम तो वो चालू हो जाएगा. जैसे वो वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया उसके बाद आपने अपने सिस्टम को रख दिया, रिमोट कंट्रोल आपका नेचुरली पावर सेविंग मोड में चले जाता है और वो बैटरी को यूज नहीं करता. Okay, so that is why the battery, a normal AA battery can power up a device और वो generally कई महीनों तक उस device को चलाता है. Is it clear? So power saving mode is generally there in case of microprocessor, microcontroller. It is not there in case of microprocessor. Is the point clear to you? Point number 7 clear to you? Yes. Okay, now I'll go to the point number 8. Point number 8 में ये लिखा गया है कि जो number of registers है, okay, if we talk about registers, register का मतलब क्या होता है? It is a temporary space where we store a data. Okay, so data को generally एक temporary space दिया जाता है और वो कहाँ पे होता है? Is it there in the memory or is it there in the processor? Register कहाँ पे होता है? What is the location of register? It is there in processor. ओके, सो प्रोसेसर जो है उसके पास ये रजिस्टर होता है. इस रजिस्टर के अंदर आप टेम्परेरी डेटा को रखते हो ताकि आप जो मेमोरी एक्सेसिंग टाइम है उस मेमोरी एक्सेसिंग टाइम को आप रिड्यूस कर सको. सो दैट इज व्हाई वी यूज अ रजिस्टर. सो अ माइक्रो प्रोसेसर जनरली हैज less number of register, whereas a microcontroller will have a large number of registers. Okay, so large number of register अगर होगा तो एग्जीक्यूशन फास्टर किसमें होगा, प्रोसेसर में या कंट्रोलर में? कोई बता सकता है? Controller. प्रोसेसर में. Processor has less number of register, controller has large number of register. So अगर ज्यादा रजिस्टर होगा तो मेमोरी एक्सेस करना कम होगा आपके लिए, ज्यादातर आपका डेटा रजिस्टर में ही होगा. तो जो भी प्रोसेसिंग करना होगा प्रोसेसर को प्रोसेसर में ही डेटा मिल जाएगा, उसको मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बराबर. सो नेचुरली अगर आपको मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं है, डेटा आपको प्रोसेसर के अंदर ही मिल रहा है, तो आपका जो मेमोरी एक्सेसिंग का जो टाइम था वो आपका बच रहा है. तो एग्जीक्यूशन किसमें फास्ट होगा? विल इट बी फास्टर इन कंपाइलर, सॉरी कंट्रोलर या प्रोसेसर? Controller में. So that is why controller will give you a faster processing speed compared to a microprocessor. कंट्रोलर का स्पीड ज्यादा फास्ट होगा, आप बटन प्रेस करोगे इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा. Whereas in case of a processor, पहले आपको हार्ड डिस्क से मेमोरी को
रैम में डालना पड़ता है। ओके, सो जो भी आपका ओएस होगा वो पहले रैम में लोड होगा, रैम में लोड होने के बाद फिर वो आपके पूरे सिस्टम को बूट करेगा। ओके, सो दैट इज इट टेक्स अ न्यूमरस अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, फिर पेजिंग एल्गोरिथम यूज करते हुए वो प्रोसेसर में धीरे धीरे आएगा, उसके कैश मेमोरी में आएगा और फिर आपका आगे का प्रोसेस चालू होगा। सो इफ यू हैव स्टडीड द ओएस वाला पार्ट, ओएस में देयर वाज अ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो आपने पढ़ा होगा, सो दैट पार्ट इज बीन यूज्ड इन प्रोसेसर। तो इतना वक्त लेता है आपको, फिर पेज फॉल्ट, पेज मिस, पेज हिट, ये सब होता है, तब जाकर के आपको बेसिकली आपका कोई भी प्रोग्राम रन होता है। वेयर इन द केस ऑफ कंट्रोलर ये सब झंझट आपको नहीं है, ज्यादा नेचुरली ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपको दे दिया गया है, जो भी डेटा है वो ज्यादातर ऑलरेडी प्रोसेसर में अवेलेबल होता है। तो प्रोसेसर को आप स्टार्ट करते हो, ऑटोमेटिकली डेटा अवेलेबल होता है, उसको प्रोसेस करके फौरन आपको रिजल्ट मिलता है। तो दैट इज वाई लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इन कंट्रोलर, बिकॉज जो डिवाइस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद कंट्रोलर, इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। व्हाट इज मैटर ओवर देयर इज परफॉर्मेंस। ओके, सो दैट इज व्हाई कंट्रोलर के अंदर हम जानबूझ के ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स को डाले जाते हैं, प्रोसेसर के अंदर लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स को यूज कर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज जो आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर में, यू नो वी हैव गॉट ओनली वन सेट ऑफ मेमोरी, whereas in the controller we have got two set of memory. One is called as a RAM and another is called as ROM. RAM में क्या स्टोर करते हैं, डेटा या प्रोग्राम? What we store in RAM? डेटा। डेटा, बिकॉज डेटा कैन बी लॉस्ट, वो चलेगा। अगर मुझे माइक्रोवेव ओवन में जो मेरा टेम्परेचर मैंने जो सेट किया है, जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने रखा है, या 50 सेकंड के लिए अगर मैंने माइक्रोवेव ओवन के लिए जो मैंने सेट किया, दैट इज अ डेटा। वो डेटा लूज हो गया तो चलेगा, वो अगली बार मैं 1 मिनट का रख दूंगा, 2 मिनट का रख दूंगा, वो डेटा चलेगा मेरे लिए। लेकिन अगर जो प्रोग्राम है कि इंडक्शन को कितना घुमाना है या किस स्पीड से घुमाना है या कितना टेम्परेचर देना है, अगर वो खाना बनाने का जो कोडिंग है, वो कोड ही अगर मैंने अगर गुम हो गया मुझसे, तो मेरा जो पूरा इक्विपमेंट है वो पूरा बिना काम का हो जाएगा। सो व्हाट इज डेटा? द डेटा इज नथिंग बट विच कैन बी चेंज। जो चेंज होता है वो आप जनरली रैम में डाल सकते हो। प्रोग्राम मेमोरी विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्रोग्राम जो हमेशा आपका फिक्स रहेगा, उसको आप ऐसी मेमोरी में रखना पड़ेगा कि जो कि नॉन वोलेटाइल हो। और नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? विच इज मेमोरी विच इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर? विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किधर होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी इज हार्ड डिस्क। When we talk about primary memory, always remember, ये बहुत बार डाउट मैं क्लियर करता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। If you are talking about primary memory, it does not mean we are talking about RAM. If you are talking about secondary memory, it does not mean that we are talking about ROM. ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब एज सिंपल एज दैट, इट मींस रैम। ओके, इट आल्सो इंक्लूड्स रॉम, बट वो रॉम जो है वो बहुत छोटा होता है। ओके, रॉम इज जनरली इन मेगाबाइट्स, ओके, एमबी में होता है, और जो रैम है वो गीगाबाइट्स में होता है। ओके, वी हैव गॉट, अगर आप अपने सिस्टम में देखो तो 8 GB या 16 GB का रैम सपोर्ट करता है। ओके, रॉम उसके अंदर हार्डली 100 MB 500 MB का रॉम होगा। ओके, सो जनरली वी when we talk about primary memory, it holds both RAM and ROM, but we generally talk about RAM only. Secondary memory का मतलब क्या होता है? We are talking about hard disk, okay, या SSD की बात की जा रही है। okay, so which is external to your processor, जो बाहर की पार्ट है, okay, which is not there on your motherboard के बाहर वाली जो मेमोरी होगी, that is called your external memory. okay, is it clear? That is called as your secondary memory. is the point clear? So जो प्रोग्राम होगा, that would be stored into a memory called as ROM, not in secondary memory. Is the point clear to you? Yes sir. Okay, so that is if you have got only one set of memory, एक ही memory के अंदर अगर आप प्रोग्राम और डेटा स्टोर करोगे, which is stored in microprocessor, that architecture is called as Von Neumann. von Neumann. Whereas in the case of microcontroller, we have got two different set of memory. One is called as a program memory, other is called as a data memory. Then that architecture will be called as Harvard. Harvard architecture. So that is the point number 9. That point number 9 is saying कि microprocessor में von Neumann होता है, microcontroller के अंदर Harvard architecture. And last is the application area. So the application area is PC, laptop, mobile. Mobile के अंदर भी अब microprocessor नहीं बोल सकते. Mobile के अंदर we generally use a special device called as SoC. Okay, so SoC is a system on chip. So जो आप Snapdragon या MediaTek या ये सब जो आप यूज करते हो, that is it comes under SoC. तो इसमें लिख दिया है, बच्चे ने लिख दिया है, but generally आप PC और laptop को डालने की कोशिश करो. Okay, and the example of microcontroller can be used in washing machine, it can be used in microwave oven, it can be used on a remote control, etc. etc. So is the example clear to you? Yes sir. Okay, so I hope the difference is clear to you. Difference समझ में आ गया आपको?
Yes. Is the microprocessor microcontroller clear to you? Does anybody has any doubt? कोई पूछना चाहता है माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर के बीच में डिफरेंस? Okay, so fine. So whatever that we'll be discussing from later from this part will be all be based on microcontroller. Okay, microprocessor हम पूरी तरह से हटा देंगे, तो उसका रिलेवेंसी 8086 पे कहीं ना कहीं वो यूज होएगा, जैसे पाइपलाइनिंग उसका यूज होगा, रजिस्टर जो आपने पढ़ा था वो यूज होगा, ये सब चीजें यूज होगी। बट जनरली जो भी हम बात करेंगे आगे के सब्जेक्ट में, दैट इज ऑल रिलेटेड टू माइक्रोकंट्रोलर्स। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड सिस्टम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेसर which is used in a microwave one, we are talking about a processor which is used in a remote controller, okay, so we are talking about all those processes, okay, is the point clear? We'll start with the next topic. The next topic is very important topic, so please make an important note about the next topic. The next topic is called as RISC and CISC. Okay, so write down the question. Write down the question, which is an important question. Differentiate between RISC and CISC processor. Okay, so RISC can be written down as RISC and CISC can be written down as CISC. Okay, differentiate between RISC and CISC processor. Okay, write down that question. I will explain that point. थोड़ी देर में I'll just show you the syllabus. We'll keep a track of syllabus as well. Okay, so syllabus. Okay, so this is the syllabus of your embedded system, MEP. So MEP में हमने overview अभी तक देख लिया. Okay, we have seen the architecture. Okay, application area थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन और डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैटेगरीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे. Right now, what we are going to see is called as CISC and PISC. Okay, this is the part that we are going to see. एंड बाकी इससे पहले हमने एक डिफरेंशिएट देख लिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर, जो हमने कवर कर लिया है. ओके, so these three four topics we have covered till now. So write down the next topic called as RISC and CISC. So RISC and CISC क्या है? ये दो फिलॉसफी है कोई भी कंट्रोलर को या प्रोसेसर को डिजाइन करने के लिए. ओके, व्हाट इज इट? इट इज अ फिलॉसफी, इट इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोसेसर और अ कंट्रोलर. ओके, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलर्स, प्रोसेसर का पार्ट कम आएगा इसके अंदर, बट एक सिर्फ क्योंकि आपने प्रोसेसर पढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिर हमने एक 8086 को सिर्फ रख लिया है एक उसके लिए, एक पॉइंट के लिए, ताकि उसको यूज करके आप रिस्क प्रोसेसर को समझ सकें. ओके, so first of all, you need to understand what is the full form of RISC. Okay, so full form of RISC is reduced instruction set computers. Okay, write down the full form of RISC. Okay, write down the full form of RISC as reduced instruction set of computers. And the CISC is, the full form of CISC is complex instruction set of computers. Complex instruction set of computers. Okay, so that is the acronym or full form of RISC and CISC. उसके बाद हम कोशिश करते हैं समझाने की. Okay, so when we talk about RISC, when we talk about a RISC generally जो है, ये सिस्टम है, ये जनरली हमेशा माइक्रो कंट्रोलर को बनाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, तो जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन करना है, जो फिलोसफी उसको डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है, इट ऑलवेज फॉलोज द फिलोसफी ऑफ डिजाइनिंग बेस्ड ऑन RISC कंप्यूटर्स. ओके, सो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स की फिलोसफी पे आप माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन करने की कोशिश करते हो. और जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर बनाने की कोशिश करते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट डिजाइनिंग अ न्यू माइक्रो प्रोसेसर, चाहे वो AMD ले लो, Ryzen ले लो या Intel ले लो. ओके, सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट बिल्डिंग ऑल दीस प्रोसेसर्स, यू ऑलवेज build these processors on the basis of a philosophy called as CISC. Okay, ये दो फिलोसफी है, दो स्टडी है, जिसके बेसिस पे आप कोई भी सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं. Is the point clear to you? Are you able to understand what is RISC and CISC? So अगर आपसे कोई पूछा जाए what is RISC and CISC, एक लाइन में बोला जाए तो RISC and CISC are nothing but these are the philosophies of making a computer system. Okay, so if you want to make a microcontroller should be made using RISC philosophy, and if you want to make a microprocessor, it should be made using CISC philosophy. Okay, अब ये फिलोसफी क्या है, इसको थोड़ा एलॉबरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक मॉड्यूल जो है वो रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो ARM7 की जो बात करते हैं, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिस्क माइक्रो कंट्रोलर. ओके, तो ARM का अगर आप फुल फॉर्म देखो, इट इज एडवांस्ड रिस्क मशीन. ओके, सो ARM पूरा का पूरा एक रिस्क मशीन है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं. ओके, सो रिस्क जो फिलोसफी थी, ओके, आई विल टेक अ PPT, ज्यादा बेटर होगा. I will just try to make a PPT.
सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिस्क प्रोसेसर जो है आपका, उसके अंदर जो फिलॉसफी सबसे पहले रिस्क प्रोसेसर के अंदर बनी गई थी, वो फिलॉसफी जो नंबर 1 फिलॉसफी थी, उसकी फिलॉसफी का ये कहना था कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा, वो इंस्ट्रक्शन का जो साइज होगा दैट वुड बी सेम. ओके, अगर आपको याद होगा 8086 में व्हाट वाज द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन? कैन यू टेल मी व्हाट वाज द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन? 6 byte. It was not 6 byte, 6 byte. it was up to 6 byte. It was from 1 byte to 6 byte. The maximum size of an instruction was 6 byte, but it can take a size of 1 byte also, it can take a size of 2 byte also, it can take a size of 3, 4, 5, 6 byte, but the max size of an instruction was 6 byte. But in case of RISC machine, जो instruction का जो size होगा वो generally fix होगा. If you are talking about ARM7 की अगर हम बात करें, जो उसका size होगा that is 4 byte. Okay, कोई भी इंस्ट्रक्शन का जो साइज होगा, कोई भी, चाहे वो ऐड ले लो, सब्ट्रैक्ट ले लो या डिवाइड ले लो, हर एक इंस्ट्रक्शन का जो साइज होगा दैट इज फिक्स्ड एंड उसका साइज विल बी 4 byte. इज द पॉइंट क्लियर टू यू? पहला पॉइंट क्लियर है? द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू? Yes. सो इन केस ऑफ रिस्क मशीन जो साइज है वो फिक्स्ड है, और सिस्क में जो साइज है वो वेरिएबल है. ओके, सो वहां पे जो साइज है इंस्ट्रक्शन का, इट कैन बी 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, 5 byte, 6 byte. In case of 8086 the maximum size is 6 byte. Okay, whereas in the case of RISC machine जो साइज है वो फिक्स है. so इससे बहुत बेनिफिट मिलता है उससे, क्योंकि हमारा जो रिस्क है वो माइक्रो कंट्रोलर है, और माइक्रो कंट्रोलर जो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिस्टम है. ओके, सो परफॉर्मेंस हमें ज्यादा देना है. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, रिजिडनेस चाहिए, हमें परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए. ओके, सो इससे ये फिक्स करने से, इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स करने से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है. कैसे बढ़ती है वो हमें आगे पता चलेगा. ओके, सो अगर हमारी इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स होगी, सो जो भी फेच होगा, ओके, फेच करने के लिए यू नो राइट, कोई भी इंस्ट्रक्शन को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए 3 स्टेप होता है. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज फेच, सेकंड इज कॉल्ड एज Decode. थर्ड वन इज कॉल्ड एज Execute. execute. So every instruction goes through 3 cycles. The first one is called as a fetch, second cycle is called as decode, and third one is called as a execute. Okay, so अगर मुझे कोई भी चीज को फेच करना होगा, okay, कोई भी चीज को यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन को मुझे फेच करना होगा, तो उसको फेच करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 बाइट मुझे फेच करना है, और अगर मेरा डेटा बस मान लो 4 into 8 is how much? 32. ओके, अगर मेरा डेटा बस इज ऑफ 32 बिट, डेटा बस इज ऑफ 32 बिट, तो ये 4 बाइट का कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो कितना साइकिल लगेगा, कितनी बार में आ जाएगा मेरा डेटा या इंस्ट्रक्शन? 1 cycle. एक साइकिल में आ जाएगा. अगर मैं ऐड को बुलाऊंगा, ऐड भी 32 बिट ले रहा है, डिवाइड कर रहा हूँ वो भी 32 बिट ले रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो भी 32 बिट ले रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन में उठा के ले लो वो 32 बिट ही ले रहा है, और मेरे पास जो डेटा बस है वो भी 32 बिट का है, तो नेचुरली फेच करने के लिए मुझे एक ही बार में मुझे फेच करके मिल जाएगा मेरा डेटा. बराबर बराबर. Yes. Is the point clear to you? Whereas in the case of 8086 में क्या होता था, अगर आपको याद है डेटा बस का साइज, किसी को याद है क्या 8086 में? The size of data bus in 8086. 20 bit. We have got a data bus, we have got a address bus, and we have got a control bus, right? 3 बस होते हैं. Yes. So एड्रेस बस कितने साइज का होता था? एड्रेस कितने बिट का होता था? 20 bit. 20 bit. एड्रेस 20 बिट का होता था. डेटा कितने बिट का होता था? 16 bit. 16 बिट. डेटा 16 बिट का. और कंट्रोल बस कितने बिट का होता था? 60. 16. वो भी 16. 16 बिट का होता था. और ये किस प्रोसेसर की बात हो रही है? Which 8086. 8086. So अगर मेरा एक add instruction है, let's assume I've got an add instruction, और ये स्पेस ले रहा है, इस इंस्ट्रक्शन का जो स्पेस है इट इज टेकिंग अ 2 बाइट का स्पेस. ओके, अगर मेरा एक मल्टीप्लिकेशन करके इंस्ट्रक्शन है, इट इज टेकिंग अ स्पेस ऑफ 4 बाइट. सो अगर मुझे ऐड इंस्ट्रक्शन को कॉल करना है, ओके, इफ आई वांट टू कॉल एन ऐड इंस्ट्रक्शन, वो ऐड इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है, 2 बाइट का मतलब 16 बिट, तो वो कितनी बार में आएगा डेटा बस पे बैठ के? एक साइकिल में आ जाएगा या 2 साइकिल लगेगा? 1 cycle. ऐड करने के लिए 1 साइकिल, क्योंकि मेरा डेटा बस 16 बिट का है और एड्रेस जो ऐड है उसका साइज भी 16 बिट का है. सो एक ही बार में बस में बैठ के आ जाएगा पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, नो प्रॉब्लम. एक साइकिल में मुझे मिल गया फिच. लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा, उसका साइज नेचुरली बड़ा हो गया मल्टीप्लिकेशन का, तो मुझे कितना साइकिल लग रहा है मल्टीपल को फेच करने के लिए? 2 cycle. So what is happening is I require multiple fetch cycle in case of
CISC प्रोसेसर, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है दैट इज नॉट फिक्स्ड, बराबर ना, बिकॉज इंस्ट्रक्शन का साइज अगर 6 बाइट अगर अज्यूम कर लो, इट वुड टेक हाउ मेनी साइकिल्स, इट वुड टेक 3 साइकिल्स। अगर इंस्ट्रक्शन का जो साइज है अगर वो 1 बाइट है, इट वुड टेक 1 साइकिल। इंस्ट्रक्शन का साइज अगर 2 बाइट है, इट वुड टेक अगेन 1 साइकिल। इंस्ट्रक्शन का साइज अगर 3 बाइट है, इट वुड टेक 2 साइकिल। इंस्ट्रक्शन का साइज अगर 4 बाइट है, इट वुड टेक 2 साइकिल। इंस्ट्रक्शन का साइज अगर 5 बाइट है, इट वुड टेक 3 साइकिल्स। इंस्ट्रक्शन का साइज अगर 6 बाइट है, इट वुड टेक 3 cycles in order to fetch an instruction. Clear? Whereas in the case of RISC processor, since all this instruction has equal sizes, it is of same size, and the same size is that of the data bus, it would take exactly 1 cycle to fetch that instruction. Is the point clear? Is the point clear to you? Yes. Yes, sir. तो fetching किस में faster होगा? RISC में faster होगा, CISC में faster होगा? RISC में, because it will take exactly 1 clock cycle. कोई भी इंस्ट्रक्शन उठा लो, चाहे ऐड ले लो या कॉम्प्लेक्स, कोई भी इंस्ट्रक्शन उठा लो, हमेशा एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए एक ही साइकिल लगेगा, बराबर। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। ओके, ये फर्स्ट डिफरेंस किस वजह से मिलता है? बिकॉज द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज फिक्स्ड। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू? इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. वी गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? RISC प्रोसेसर में the number of registers will be large. Okay, will be large in numbers. Okay, so number of registers जो हम यूज करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर यूज करने की कोशिश करेंगे। जो तादाद है रजिस्टर की वो ज्यादा से ज्यादा होगी। ओके, सो बेसिकली अगर आपको याद होगा 8086 के अंदर, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट 8086 में कितने registers use होते थे generally? General purpose register, we are talking about general purpose register. How many general purpose register we have? 4. We have AX, BX, BX, CX, CX, DX, and DX. DX. तो ये जनरली हमारे पास 4 रजिस्टर होते थे जो हम यूज करते थे। ये चारों रजिस्टर पे हमें डेटा लेके आना पड़ता था, इसके अंदर से यूज करना पड़ता था, इसके अंदर स्टोर करना पड़ता था, इसके अंदर से ऐड करना पड़ता था, डिवाइड करना पड़ता था। प्लस we have also got a feature of memory access, बराबर ना। प्लस हमारे पास मेमोरी भी होती थी, मेमोरी से भी हम ऑपरेशन कर पाते थे, बराबर। तो अगर मुझे ऐड करना है, so I can add AX directly to BX register। मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ add AX, और डायरेक्टली मैं मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होगा, लेट्स अज्यूम 1234H, ये एड्रेस देता हूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। यानी उस लोकेशन पे जाएगा, वहां से 8 बिट का डेटा लेगा, वो AL के साथ ऐड करेगा, उसके नेक्स्ट वाला लोकेशन व्हिच इज 1235H लोकेशन, वहां पे जाएगा, वहां से डेटा उठाएगा और AH के साथ ऐड करेगा, बराबर ना। सो आई कैन परफॉर्म द ऑपरेशन बिटवीन मेमोरी एज वेल एज रजिस्टर। ओके, सो ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज आई हैव गॉट वेरी लेस नंबर ऑफ रजिस्टर। ओके, सो RISC ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 4 रजिस्टर, व्हाट वी डू, we'll try to increase the number of registers. Okay, 4 रजिस्टर की जगह लेट्स assume हम 37 रजिस्टर यूज कर सकते हैं। ओके, या हम जब ARM7 की बात करते हैं, ARM7 has 37 registers. ओके, 8086 में it has only 4 रजिस्टर, ARM7 के अंदर 37 रजिस्टर है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा हो गए तो आप नेचुरली क्या होगा, आपका मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? If you have got a large number of register, the dependency on memory will be less and less. As the dependency on memory is lesser, the execution of any instruction will be faster. In which case, executing an instruction which is based on register or executing an instruction which is based on memory, which will be faster? Registers. Add AX, BX ज्यादा फास्ट होगा या add AX, 1 2 3 4H ज्यादा फास्ट होगा? AX will be faster. DX. because AX भी प्रोसेसर के पास है, BX भी प्रोसेसर के पास है। सेकंड केस में AX तो प्रोसेसर के पास है, लेकिन 1 2 3 4H मेमोरी के पास है। तो पहले मेरे को मेमोरी में जाना पड़ेगा, मेमोरी से वो जो डेटा है उसको डेटा बस में बैठा करके MBR करके रजिस्टर में लाना पड़ेगा। याद है आपको? MBR से फिर वो MER में आएगा, MER से फिर वो IR में आएगा। ये सब याद है आपको? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमने पढ़ा था। Yes, sir. Okay, so it would take large number of steps in order to shift that data into a register, बराबर। So naturally मेमोरी से अगर आप ऑपरेशन करोगे वो ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू अगर आप रजिस्टर से करोगे।
सो रिस्क क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेमोरी, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड इंक्रीज द साइज ऑफ रजिस्टर, आई वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ रजिस्टर. सो 8086 में जो 4 रजिस्टर थे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे. तो ये ARM 7 के अंदर 37 रजिस्टर यूज होता है. देयर इज अ कंट्रोलर कॉल्ड एज PIC18. ओके, देयर इज अ कंट्रोलर कॉल्ड एज PIC18. इट इज अ कंट्रोलर, इट इज नॉट अ प्रोसेसर. PIC18, इसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर इज 4097. ओके, it has got 409 different registers that can be used for performing the respective operation. Okay, so जैसे जैसे different microcontroller की डिपेंडेंसी के हिसाब से जितना उसको फंक्शनैलिटी करना है, उस हिसाब से हम वो माइक्रोकंट्रोलर यूज करेंगे और उसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ते चले जाएंगे. सो नेचुरली जैसे रजिस्टर बढ़ेगा तो मेमोरी पे डिपेंडेंसी कम होगी, डिपेंडेंसी कम होगी तो एग्जीक्यूशन फास्टर होगा. इज द पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना. रिस्क और सिस्क में ये 2 पॉइंट से बाकी सारे डिफरेंस आपके क्लियर हो जाएंगे. अगर ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ तो सारा का सारा पॉइंट आपके आगे के क्लियर हो जाएंगे. इज द पॉइंट क्लियर टू यू? दिस 2 पॉइंट इज क्लियर टू यू? The first point is always the instruction size is fixed. In which case, risk or CISC? Risk. Risk में हमेशा instruction size fixed होगा. Example, in case of ARM 7, the size is always 4 byte. Second जो point हमेशा आपको याद रखना है risk के अंदर, the number of register that will be used in RISC processor will be large. Okay, ये 2 point अगर आपको याद है तो आप आगे के 11, 12, 13, 15 जितने भी डिफरेंस है वो आप बड़े आसानी से क्लियर कर पाओगे. ओके, सो आई जस्ट मिनिमाइज इट. आई विल गो बैक टू द पीडीएफ एंड विल ट्राई टू कवर द नेक्स्ट पार्ट. ओके, एक और पॉइंट है जो यहाँ पे दिया गया है. रिस्क प्रोसेसर में देयर इज ओनली 2 ऑपरेशन व्हिच इज देयर, जो आप मेमोरी पे कर सकते हो, व्हिच इज लोड एंड स्टोर ऑपरेशन. ओके, ये जो लोड और स्टोर ऑपरेशन है जो मेमोरी पे है आपका, ओके, लोड एंड स्टोर, ओनली दिस 2 इंस्ट्रक्शन व्हिच इज only there, which takes support of memory. इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सब के सब रजिस्टर पे करते हैं. ओके, that means all the arithmetic logical operation will be performed not on register, not on memory, but will be performed on register. तो सारे के सारे जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, फिर और लॉजिकल एंड, ये सारे के सारे ऑपरेशन आपके रजिस्टर पे होंगे. सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन है जो कि लोड है और स्टोर है. ये 2 इंस्ट्रक्शन जो होगा वो सिर्फ मेमोरी पे होगा. सो लोड क्या करता है, मेमोरी से डेटा उठाएगा, डायरेक्टली सबको रजिस्टर में डाल देगा. और स्टोर क्या होगा, एक बार सारे ऑपरेशन हो जाएंगे तो सारे डेटा को उठा के वापस मेमोरी में डाल देगा. सिर्फ ये 2 इंस्ट्रक्शन के लिए आपको मेमोरी का जरूरत है. बाकी कोई भी काम के लिए आपको मेमोरी से लेना देना नहीं है. आपका सारा का सारा काम रजिस्टर में हो जाएगा. So that is one of the point that you need to remember. Now we'll directly go to the differences. Okay, we'll go to the differences. ये सारा point अगर आप difference एक बार समझ लिया तो वो बाकी आपका point clear हो जाएगा. So the first difference that you can see in CISC, आप एक difference book अगर आप use करें तो book के अंदर ये difference बनाओ और उसके अंदर याद से दो प्रोसेसर जो हम use कर रहे हैं CISC के अंदर we are using 8086 and RISC के अंदर हम use कर रहे हैं ARM7. Okay, ARM7 का full form is Advanced RISC Machine. So ऐसा कुछ करके आप अपने बुक में बनाओ and write down the difference and I will keep on explaining what is the difference in it. Okay, so the first difference is the size of instruction is variable in case of CISC processor, whereas in the case of RISC processor the size is fixed. Okay, size क्या है, in case of 8086 we are talking about only 8086, the size is between 1 to 6 bytes. Okay, whereas in the case of ARM7 the size is fixed and the value is, what is the value of the instruction size? What is the value? 4. 4 byte. Okay, so the point is clear to you, the first point? Yes. Second point क्या है कि fetching करने के लिए अगर आप fetch करोगे तो 8086 में जो डेटा बस है वो डेटा बस का साइज है 16 बिट. अगर आपका मान लो 4 बाइट का कोई डेटा कोई इंस्ट्रक्शन अगर आपको फेच करना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल साइकिल लगेगा. यू रिक्वायर 2 साइकिल्स. Okay, so that is what written down in the second difference. Key fetching takes multiple cycles, whereas in the case of ARM7, because the instruction size is fixed, because the same instruction size is the size of the data bus, it will naturally हर एक fetch में वो एक exactly एक instruction लेगा. That is why it takes only 1 cycle for fetching. So the second point is clear to you, I hope. Is the second point clear? Yes. Okay. Second जो है थर्ड जो डिफरेंस है
ऑपरेशन टेक प्लेस इन रजिस्टर एज वेल एज मेमोरी। ओके, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था उसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर जो है वो कहां पे मिलेगा आपको, रिस्क में मिलेगा। सिस्क में रजिस्टर बहुत कम तादाद में, बहुत कम यूनिट में मिलता है। ओके, सो एज द नंबर ऑफ रजिस्टर इज लेस, the operation is supported in register as well as with memory also, in which case CISC or RISC? CISC. CISC, because the number of register is less, that is why third point में क्या लिखा है, the operation take place in register as well as in memory, whereas in the case of RISC, operation generally take place in register. Why it take place only in register? Because we have got large number of register, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास register है। We have got 37 number of register in ARM7, we have got 4097 number of register in PIC18। ओके, सो ये सारे रजिस्टर को यूज करने की जरूरत क्या है? अगर हमारे पास इतने सारे रजिस्टर है तो हम उसके अंदर ही डेटा डाल देते हैं। सो हमें मेमोरी से एक्सेस करने की ज्यादा कम से कम जरूरत पड़ेगी। ओके, सो that is why that is what written down in the third difference. So operation ज़्यादा से ज़्यादा register में ही होगा, यानी processor में ही होगा in case of RISC, whereas in the CISC it will happen in processor as well. It has to go into memory as well for fetching the other data. Now we'll go to the fourth difference. The fourth difference is it supports large number of addressing mode in case of CISC, whereas in the case of RISC it supports less number of addressing mode. Can anybody explain me this concept? Addressing mode is supported in large number, ज़्यादा addressing mode लगेगा। Sir, in CISC we use registers and memory also, but in RISC we use large number of registers, so we don't require memory to fetch the data. Okay, so अगर आप addressing mode का मतलब, अगर किसी को जो लोग भूल गए हैं या जो काफी टाइम हो गया है, addressing mode का मतलब क्या? It is a way of passing an operand into an instruction. So अगर instruction में मुझे एक operand पास करना है तो मैं कैसे पास कर सकता हूँ? I can use the first one is called as a immediate addressing mode, बराबर। So immediate में क्या होता है? डायरेक्टली आप डेटा को रजिस्टर में डाल देते हो। सेकंड वाला कौन सा था? किसी को Register addressing mode. सेकंड एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या करते हो? रजिस्टर के अंदर डेटा आप डालते हो और वो रजिस्टर को आप एक दूसरे रजिस्टर में आप डालते हो। सो यू पास द डेटा थ्रू अ रजिस्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज सेकंड एड्रेसिंग मोड। थर्ड में क्या होता है कि आप थ्रू अ मेमोरी एड्रेस आप डेटा को पास करते हो। तो आप इंस्टेड ऑफ गिविंग द डेटा यू पास द एड्रेस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप जो एड्रेस है वो रजिस्टर में पास करते हो। ओके, सो सिंस सिस्क के अंदर मेमोरी इंटरैक्शन है, रिस्क के अंदर मेमोरी इंटरैक्शन नहीं है। ओके, सो मेमोरी से इंटरैक्शन अगर है नहीं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मुझे यूज में नहीं आएगा। आई डोंट हैव टू टेक इनटू डायरेक्ट, मतलब मुझे एड्रेस का जरूरत ही नहीं है। मैं जब मेमोरी यूज नहीं कर रहा हूँ तो एड्रेस किस काम का आएगा? तो मतलब उसके अंदर इसका मतलब बेसिकली मुझे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का सपोर्ट मिलेगा, मुझे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें डेटा जो है डायरेक्टली मैं रजिस्टर में डाल रहा हूँ या डेटा डायरेक्टली मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, रजिस्टर के थ्रू मैं डाल रहा हूँ। तो ये दो सपोर्ट तो मुझे मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में तो आप एड्रेस डालते हो, तो एड्रेस किसका होता है? मेमोरी का होता है, ना कि रजिस्टर का। तो अगर ये दो एड्रेसिंग मोड ही नहीं होगा तो नेचुरली मेरा एड्रेसिंग मोड कम होगा। समझ में आया ये पॉइंट आपको? इज द पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. Because according to the second point that we have seen in the PPT में second point क्या था कि कम से कम रजिस्टर यूज होता है सिस्क में और रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर यूज होता है। ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर अगर यूज होगा तो नेचुरली ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन जो प्रोसेसर में होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा, यानी मेमोरी में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेमोरी में मुझे जाने की जरूरत नहीं है डेटा को लेने के लिए, तो यानी मेमोरी का जो एड्रेस मुझे देना पड़ता था, जो एड्रेसिंग मोड में जो मुझे एड्रेस पास करना होता था मेमोरी का, वो मुझे देने की जरूरत नहीं है। यानी देखा जाए तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मेरे लिए कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा इन दिस केस, इन द केस ऑफ रिस्क प्रोसेसर। सो इसका मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? I'll be using immediate addressing mode, I'll be using register addressing mode और लास्ट वाला जो बच गया which is implied addressing mode। ये तीन एड्रेसिंग मोड ही मैं जनरली यूज करूंगा in case of risk, but in the case of CISC I'll be using direct addressing mode, I'll be using indirect addressing mode, I'll be using immediate, I'll be using register, I'll be using implied addressing mode. Is the concept clear to you? Is the point clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बट मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। We'll go to the next point is called as large number of instruction set are there in CISC, whereas in case of RISC the instruction set is less, it is reduced. Can anybody explain me this point?
again it is related to second point. Okay, if you have understood the second point in PPT, it is related to the same thing. तो explain कर सकता है ये वाला point. Instruction set will be less in case of RISC processor, whereas in the case of CISC processor, instruction set will be larger. How it is possible? I will take the example. I will explain the example with the help of PPT again. So, अगर मान लो there is a add instruction. Okay, there is a add instruction in 8086. So add को मैं कैसे लिख सकता हूँ? I can write add. Can I write AL comma BL? Can I write like this? I can write that. ये valid है ना? Yes. Okay. Second way of adding is I can directly add AL with a data called as 05H. Okay, AL भी 8 बिट का रजिस्टर है और डेटा 05 भी 8 बिट का है. So मैं ये भी कर सकता हूँ. तो ये ऐड को मैं डायरेक्टली रजिस्टर के थ्रू यूज कर सकता हूँ या इसके डायरेक्टली डेटा के साथ भी यूज कर सकता हूँ. Third, can I use with memory as well? So can I use add AL comma with memory? Can I use 1 2 3 4H? क्या मैं ये कर सकता हूँ? Is it possible? This is valid, right? Yes. Yes. Okay. So this can I also do this? Add AL comma. The address can be stored into one of the register called as BX register. Can I do this? Yes. Add AL comma BX. So यानी add को करने के लिए, add instruction को करने के लिए, I have got a support of register as well. I've got a support of memory as well. So एक normal सा add करने के लिए मुझे 4 different instruction available है मेरे पास. Similarly ADC करने के लिए भी मुझे 4 होंगे. I can perform the add with carry with a register also, with data also, with a memory also, with the address stored into a register also. बराबर. Similarly subtract करने के लिए भी मेरे को 4 ऑप्शन अवेलेबल है. I can perform the subtraction with a register. I can subtract with a data directly with the data. I can subtract with the data which is present in a memory. I can subtract the data which is present in a memory whose address is given by a register. बराबर. So हर एक को करने के लिए मेरे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं. हर एक इंस्ट्रक्शन को करने के लिए डिवाइड करने के लिए भी 4 होंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी होंगे, ऐड के लिए भी होंगे, और के लिए भी होंगे. बराबर. अगर एड्रेसिंग मोड, अगर आपका मेमोरी से इंटरेक्शन नेचुरली अगर खत्म हो जाता है तो ये 2 इंस्ट्रक्शन आपका खत्म हो जाता है. बराबर ना? ये 2 इंस्ट्रक्शन आपका कम हो जाएगा. Because the interaction with memory is less. You are not interacting with memory, you are just interacting with register only. So register करने के लिए सिर्फ ये 2 ही इंस्ट्रक्शन is applicable. The first 2 instruction is applicable. So ये 2 ही supported है. तो इसका मतलब क्या होगा? हर एक इंस्ट्रक्शन में जो मेमोरी से इंटरेक्शन होता था वो वाला इंस्ट्रक्शन सेट मैं क्या करूंगा? रिड्यूस कर दूंगा. तो नेचुरली जो मेरा इंस्ट्रक्शन सेट का जो साइज था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो एक ऐड करने के लिए जो मेरे पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी थी वो अब कम होकर के 2 ही पॉसिबिलिटी है. सिमिलरली ऐड विद कैरी के लिए जो 4 थी वो 2 हो गए. मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी वो 2 हो गई. डिवाइड करने के लिए जो 4 पॉसिबिलिटी थी वो 2 हो गई. सो नेचुरली जो इंस्ट्रक्शन सेट था, जो समझ लो अगर 1000 लगते थे पहले, अब वो कट डाउन होकर के कितने हो गए? 500 हो गए या 200 हो गए. समझ में आया आप सबको? इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay, so basically what is happening, as the instruction, as the addressing mode is lower, as the dependency on memory is less, naturally क्या होगा? जो instruction set होगा वो कम से कम लगेगा. So that is why the name of CISC is called as, it is a complex instruction. Okay, because it requires a large number of instruction set of computer, and it is called as a RISC. It has a reduced instruction set of computers. So reduced instruction नाम कहाँ से आया? It is because of कि जो RISC है यानी RISC के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है वो कम से कम लगेंगे, और जो आपका CISC है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन लगेगा. Is the point clear? The 5th point is clear to you? Is the 5th point clear to you? Okay. Now the 6th point is decoding is slower, decoding is faster. Decoding is slower in case of CISC, in case of RISC it is faster. Why it is so? Because अगर lookup table के अंदर मैं क्या करता हूँ? Lookup table के अंदर decoding करता हूँ, right? So I've got a byte code, या मैं उसको opt code बोलता हूँ, op code बोलता हूँ. ये op code को मैं क्या करता हूँ? Lookup table में जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि ये op code का actually meaning क्या है. So अगर naturally मेरे पास instruction ज्यादा होंगे
तो इसका मतलब उसके ऑप कोड रिस्पेक्टिव ऑप कोड में यानी लुकअप टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे, बराबर ना। सो add al BL will have a opcode, add AL, 05 will have a different opcode, add AL, within square bracket with memory will have different opcode, बराबर। So as I've got memory के साथ support मेरा अगर कम होगा, अगर memory के साथ interaction मेरा कम होगा, तो instruction मेरा naturally कम होगा। अगर instruction मेरा naturally कम होगा, तो number of opcode will be less। जो lookup table के अंदर जो मेरा opcode की जो entries होगी, जो table के अंदर जो tuples होंगे यानी जो record होंगे वो less होंगे। So अगर less होंगे तो जो searching में जो time लगेगा वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। So that is why decoding जो होगी वो मेरी ज्यादा फास्टर होगी। किस केस में? रिस्क में या सिस्क में? Risk. Risk. Because why it is faster? Because the number of instruction is less in case of RISC processor. So the number of opcode representing this instruction will be less. Since the number of opcode representing this instruction set will be less, the lookup table, the entries in the lookup table will be less. Since the number of entries in the lookup table will be less, the identification part will be taking less time. This identification part is called as decoding. So naturally कोई भी instruction को decoding करना faster किस में होगा? RISC processor में. Whereas in the case of CISC, I've got large number of instruction set, large number of instructions ढूंढने की वजह से क्या होता है कि उसको ज़्यादा time लगता है उस चीज को search करने के लिए into a lookup table. That is why the decoding will be much larger. It will take more. It will be more complex. It will be taking more time in case of CISC processor. Is the point clear to you? Yes. Is the point clear? Okay. Next जो part है, which is point number 7. Point number 7 क्या है? Execution किस में fast होगा? ये point आप बता सकते हो खुद ब खुद. Execution किस में fast होगा? CISC में या RISC में? Risk. 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 RISC में क्यों RISC में fast होगा? Why it will be faster in RISC? Because it takes only one cycle. One cycle. But that is for fetching. We are talking about execution. Fetching में तो एक cycle लेगा. Fetching में तो फटाफट हो जाएगा. Execution में क्यों जल्दी हो रहा है? Because it is only dealing with which memory? Processor memory or register or memory? It is dealing with only Registers. तो memory में जाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा. That is why the time taken by a RISC processor will be for executing will be lesser. Okay, so फटाफट वो execute करके देगा. Whereas in the case of CISC processor, since उसको डील करना है मेमोरी के साथ भी, उसको डील करना है प्रोसेसर के साथ भी, तो अगर मेमोरी के साथ होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में. So that is why execution will take only one cycle, क्योंकि वो डायरेक्टली मेमोरी के पास अवेलेबल है, मतलब डायरेक्टली रजिस्टर में अवेलेबल है, डायरेक्टली प्रोसेसर के पास अवेलेबल है. तो सिर्फ उस रजिस्टर को बोलेगा कि आपका जो भी कंटेंट है ऐड कर लो, आपका जो भी कंटेंट है वो आप आपस में डिवाइड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो. सो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसके पास? प्रोसेसर के पास. So that is why execution will take less time. Yeah, it will take exactly one cycle. Fetching will also take one cycle, and decoding will be also faster. So which is better? Microcontroller or microprocessor? Yes, CISC or RISC? Which is better? RISC. Risk. RISC. So is the point clear to you? Is the point clear to you? Yes. Yes. Okay. So that is why point number 8 में क्या दिखा है? RISC is faster and CISC is comparatively slower. Okay. Point number 9. Point number 9 is written down as the number of register is lower in case of CISC processor. So we are talking about 8086 only. So आप वहाँ पे लिख सकते हो number as 4 because we have got 4 register. One is called as AX, BX, CX, and DX. Whereas in the case of ARM7, the number of register is larger. So since we are dealing with ARM7, the number of register that we are dealing with, it has 37 registers. Okay. So ये क्या register है? So ये रजिस्टर अभी पढ़ना है, सुनना है, तो इट इज R0 to R36. ओके, सो ऐसे हमारे पास 37 रजिस्टर होते हैं, आगे हम देखेंगे. बट जनरली इसका जो नेमिंग है वो R0 तो R36 है, लेकिन उसको फिर हम बैंक्स में डिवाइड करते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वो कैसे करना वो हम आगे देखेंगे. बट अभी याद करने के लिए फिलहाल के लिए इट हैज ओनली 37 रजिस्टर्स. ARM7 हैज 37 रजिस्टर्स. ओके, विल गो टू द पॉइंट नंबर 10. पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है? CISC has microprogram control unit, okay, whereas RISC has, which is the other control unit? एक microprogram control unit है, दूसरा कौन सा होता है? Do you guys remember that? A control unit is of two different types. One is called as a hardwired control unit. Second one is called as a microprogram control unit. Hardwired
कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट जो आप जनरेट करते हो, कंट्रोल सिग्नल जो आप जनरेट करते हो, वो कंट्रोल सिग्नल आप किससे जनरेट करते हो, विद द बेसिस ऑफ अ हार्डवेयर। और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या करते हो, ये जो कंट्रोल सिग्नल आप जो जनरेट करते हो वो आप जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, दैट इज व्हाई द नेम इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो सिस्क जो है उसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट करते हैं, यूज करते हैं। और रिस्क के अंदर हम क्या करते हैं, डेडिकेटेड हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं, डेडिकेटेड एक हार्डवेयर यूज करते हैं जो कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। सो विच इज फास्टर, हार्डवेयर इज अ फास्टर और सॉफ्टवेयर इज अ फास्टर? Which is faster? Hardware is faster, software? Hardware is faster. Hardware is faster क्योंकि सॉफ्टवेयर को आपको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में पहले आपको मेमोरी के पास जाना पड़ेगा, उसको फेच करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको, फिर इतना करने में काफी टाइम लग जाता है। उतनी देर में हार्डवेयर अपना सिग्नल भेज भी चुका होता है। So that is why hardware is generally faster. Okay. So point number 10 is RISC uses a hardwired control unit, whereas in the case of CISC, it uses a microprogram control unit. Point number 11 is example. Point number 11 is pipelining. Okay. So in this point is important point. So यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे लिख लो in a CISC processor. इसने से pipelining लिखा है, वहाँ पे लिखो CISC processor uses pipelining which induces a bubble into it. Write down the point clearly over there. The pipelining supported by CISC has bubble into it. The pipelining supported by CISC has bubble into it, whereas the pipelining supported by RISC is a true pipelining. Okay, ये point मैं specifically next जब हमारा lecture होगा तब explain करेंगे, because मेरे ख्याल से time हो चुका है, proper 12 बज चुका है। So फिलहाल लिखने के लिए क्या लिखोगे, point number 11, the pipelining in RISC has bubble into it, whereas pipelining in RISC is a true pipelining. Okay, so again ये point जो है वो derive हुआ है ऊपर से, but एक बार उसको थोड़ा explain करने की जरूरत है, because पाइपलाइनिंग हमने लास्ट लॉकडाउन में पढ़ा था, तो शायद आपको याद है कि नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत है। एंड फाइनली द एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जांपल दैट वी हैव रिटन डाउन इज 8086 8051। अगेन 8051 इज अ माइक्रो कंट्रोलर, बट ये 8086 की फैमिली से आता है। ये 1960 1970 में ही बना था, तो उस टाइम पे रिस्क प्रोसेसर का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ओके, सो मॉडर्न जितने भी माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो ज्यादातर रिस्क पे बनते हैं, बट 8051 वाज बिल्ट प्रीवियसली, so because it belongs to 8086 family only, so it is made up of CISC processor. It comes under CISC processor. Okay, whereas if you talk about ARM7, it is based on RISC. PIC18, it is based on RISC. Spark, it is based on RISC. So these are the different microcontrollers that will be using in the module number 5th. Is the point clear? Is the difference clear to you? Is the difference clear? Yes. Yes, sir. Okay, if anybody has any doubt, please ask me. Okay, please ask me in the next class. कोई भी अगर doubt अगर आपको आता है, just wait for a few time. I have to take your attendance. So okay, what about your other classes? Your CNS has been done. CNS